Hi everyone, this is Aisha Afzal. Welcome to Positivity with Aisha. I hope you're all doing well. Good to see you all joining in. We will be going live with a lovely friend of mine who is a brilliant artist. She is also a calligrapher and she's also the founder of Modern Art Solutions. She's a multi-talented person. So we will be bringing Majubeen with you guys. Okay, wait. Hello, Hello. hello. Welcome How are to you? Positive with Aisha. How are you? I'm good. How are you? I'm great. You look glamorous as always. Thank you. You look so beautiful. I love your hair. Thank you. I love your backdrop. Dikhana That's one zara. of my latest pieces. Wow, it's gorgeous. So how have you been, Majubeen? Oh, I'm good. that I'm good. rhymes आप actually. सुनाएं? How have you been, Majubeen? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. Absolutely fine. You tell how's the time going for you? How's the winters? It's going great, यार. ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है. I have my tea ready with me Same for here. positivity with Aisha. मैंने कहा बिल्कुल. so chai must. Where is your tea? Right here. Wonderful, wonderful. So Hot and Majubeen, steaming. yeah. So today we want to know about your journey. As we all know, you are a multi-talented artist, also a calligrapher, and we just want to know about your journey. How did you get into this? How did you start it off? Okay. Basically, मेरी background so throughout art की रही है levels, A levels, then university, NCA. But then I got to know about these courses which were going on in NCA. हमारे third year में calligraphy के Sir Gohar Kalam and Rashid Bhatt, they were our faculty. तो उनके बस workshops attend किए and that totally entirely changed my perspective towards this calligraphy patterns and वो बस एक चीज drawn हो जाती है ना आपके अंदर. So after my thesis, I really got into the whole idea of continuing this. So but it just got to that level where I stopped making portraits. I stopped doing anything else. I was just drawn towards the whole calligraphy pattern. So बस अपने patterns create किए. बहुत effort की. And you are doing amazing, yaar. Mashallah, we are so proud of you. Thank you so much. Thank you. So, how did you figure out that this is what you really want to do? Like, what inspired you? How did you, decide that this is something which I want to take it up as a passion and as a profession? Actually, the thing is कि जैसे मैंने like I told you कि जैसे वो एक तरफ से मेरा ध्यान इस तरफ जाना शुरू हो गया ना बहुत ज्यादा कैलीग्राफी की तरफ के शायद ये Yeah. चीज मुझे बहुत बहुत पीस देती थी बहुत सुकून देता था it started to give some meaning to my life I think so when that started happening I think I just did not want to do anything else and when I like मैंने देखा कि लोग appreciate भी कर रहे हैं लोग इस चीज को enjoy भी कर रहे हैं कि wow अभी love her pieces and she's doing well तो वो उस चीज में भी बहुत डिफरेंस लाया ऑफ कोर्स आपकी एक ऑडियंस होती है जो आपके काम को अप्रिशिएट करे ना तो देन इट्स अ मोटिवेशन सो इट कीप्स बिल्कुल. यू गोइंग आहिस्ता आहिस्ता फिर आप और ज्यादा उस चीज को एंजॉय करते हैं और आगे लेके जाते हैं Also, art is a therapy for a lot of people. जैसे बहुत से लोगों के लिए ये एक escapism भी है from any kind of stress, anxiety, and all of that. So, what do you think art का क्या impact है mental health के ऊपर? Because I know some people जो art में उनको एक एक escape मिलता है. They forget about the world. They just get so indulged in it. So, what impact does it have on a person's mental health also? इट डज एक्चुअली पता है इट्स वेरी थेरेप्यूटिक आई फील लाइक बहुत ज्यादा हेल्प करता है इफ यू वांट टू indulge into painting sometimes it really helps you to just take out your anger take out your frustration take out your
योर माइंडसेट, अगर आपके माइंड में कुछ जैसे कोई पैटर्न्स चल रहे हैं आप उनको ड्रॉ आउट करो तो यू फील रियली गुड, यू नो, लाइक इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक. For some people it really helps them to get along with life. It does actually. बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो पेंटिंग करते हैं और वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी लाइफ का कोई मीनिंग निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, और इमेजेस के थ्रू वो कुछ चीज कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं जो वो वर्बली नहीं कह सकते. बिल्कुल. और इसमें यू कैन रियली खुल के एक्सप्रेस योरसेल्फ. दैट्स व्हाट आई फील. एक आर्टिस्ट शायद वो इमोशन कोई और नहीं समझ सकता जो एक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है. तो वो बिल्कुल पेंटिंग नहीं होती बट उसके अंदर उसका पूरा इमोशंस, पैशन, हर चीज होती है. दैट्स व्हाट आई फील. बिल्कुल आप सही कह रही हो. So Majbeen, also like this transition from being a painter and a calligrapher, how did you start doing Islamic arts? जैसे मैंने आपके बहुत pieces देखे हैं, आप बहुत खूबसूरत सूराज और आयत वगैरह के आप करती हो, तो अल्लाह के नाम और ये सब, तो ये आपका transition कैसे हुआ? How did you get into Islamic arts? जी अच्छा, another thing when I want to add here कि I'm a contemporary calligraphy artist, not a very old school calligraphy artist. जैसे हमारे कुछ calligraphy के ना patterns हैं जिनको हम follow करते हैं, जो fonts कह लो आप, जैसे हमारे English fonts होते हैं, नस्तालीक है, तुलक है, मतलब खूफिक है, दे fonts, उनको बहुत religiously मैं follow नहीं करती, learn मैंने सारे किए हैं मैं, but करते करते अपना एक फॉन्ट डेवलप हो गया. और उसके बाद यू नो व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट व्हेन यू आस्किंग कि मैंने कैसे अपने मतलब इंडल्ज किया कि मैं कैलीग्राफी में कैसे, हाउ आई राइट दी अल्लाह के नाम एंड हाउ डू आई राइट दी सूरत, आई रिलेट टू देम एक्चुअली. नजर की दुआ है व्हिच आई रियली रिलेट टू. आई फील लाइक इट्स मेड अ डिफरेंस इन माय फैमिली, so then I want to give it to other people as well. It's of course it's helpful, you know. It's Surah Kalam की एक verse है, verse number 53 and 54. So I feel like it's really important to share what I feel, what has helped me along the way. Some names I relate to, तो वो फिर उन्हीं चीजों को मैं फॉलो करती हूँ. सिस्टमैटिकली लोग उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं कि ओके फाइन, वी आल्सो रिलेट टू दिस, वी आल्सो लाइक दिस आइडिया. तो वो चीज जरा आई थिंक वही बात है, आपकी ऑडियंस अगर आपको अप्रिशिएट करती है ना, आपकी क्लाइंटेल्स, तो फिर आप और ज्यादा अच्छा फील करते हो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो. And how does it feel spiritually also, you know, जब आप अल्लाह के नाम लिख रहे होते हो और आप इतनी खूबसूरत वो आयत और लिख रही होती हैं, आयत कुर्सी and all of that, how does it also feel, you know, कुछ spiritually आपको कैसा लग रहा होता है उस वक्त? It feels like that, you know, you're giving something to other people who they can also cherish if they really like the fact that they want to have that verse and surah in their house, and if they can get it done by me, so I feel like Allah का बहुत शुक्र है कि मैं उनके लिए कर सक रही हूँ. It's a big blessing. Seriously. हम साथ साथ मैसेजेस भी पढ़ते जाए, लोग हमें बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं. थैंक यू जुबैर, ही इज वन ऑफ, आई थिंक ही आल्सो नोज यू आयशा. he is a dear friend. Yeah, he has. मैं बुलाऊंगी शो पे. हाँ, इनने मुझसे एक पेंटिंग बाय की थी 2 years ago, तो इनकी कोका कोला रेस्टोरेंट के लिए आई थिंक. हाँ बिल्कुल. अच्छा. बिल्कुल, he's a very jolly guy. Inshallah, I'm going to bring him on my show as well. He's so hardworking and I'm really proud of him from what he has achieved. माशाल्लाह. नहीं, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो. You're doing so well with all this idea of, you know, bringing in entrepreneurs who have worked so hard sitting at home, running their businesses, trying to make a name in the society. It's really good. That's what I want to do. I want to bring out. मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके टैलेंट को हाईलाइट किया जाए. I want to give them a platform where I can highlight their talent, what they're doing, bring out their passion, because they're so hardworking. क्योंकि हम इसको तो इतना पूछते हैं, इतना लुक अप करते हैं, बट ऑल दीज पीपल जो इतने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में who are so successful, who are self-made, I want to bring those people on my show as well. You know, bring out their passion and उनको लाया जाए सामने कि उनकी क्या जर्नी थी. How did they get to where they are now? बिल्कुल बिल्कुल, you're absolutely right. You're absolutely right. It's very important. Yeah. So माजबीन, थोड़ा सा बताना यहाँ पे आर्ट गैलरी का कैसा कॉन्सेप्ट है और कौन सी आर्ट गैलरीज हैं जहाँ पे आपने अपने काम को शोकेस किया है? अच्छा, I have showcased in PNCA, Nomad Gallery. Lovely. Yeah, in the Arcade Gallery, 2-3 गैलरीज लाहौर में, और यहाँ पे विंटर फेस्ट जो होता है, गार्डन फेस्टिवल, वहाँ पे अपने फेस्टिवल्स लेके जाती हूँ. Many private events I've taken my work to. So of course, like, you know, it's a
गैलरी ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज्यादा कोई हमारे पाकिस्तान में बहुत मैसिव तरीके से स्कोप है, बट जो भी गैलरीज हर सिटी में रन कर रही है दे डूइंग रियली वेल. अच्छे अच्छे उन्होंने सेटअप्स बनाए हुए, दे रियली हेल्प द आर्टिस्ट कमिंग इन, ब्रिंगिंग देयर वर्क इन, उनका काम सेल हो, उनका काम लोगों को नजर आए, पहचाना जाए. इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. सो जितनी भी हमारे यहाँ पे गैलरीज एक्चुअली कम है इस्लामाबाद में, बट आई जस्ट होप कि और खुले और लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले एग्जीबिशंस के. Yeah, maybe you can open up an art school someday, you know. Oh, I really hope so. और पाकिस्तान में what do you think, वैसे कैसा स्कोप है ओवरऑल पाकिस्तान में आर्टिस्ट्स के लिए, कैसा है, क्या मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज हैं? आर्ट की फैसिलिटीज अब देखो, अब मुझे लगता है कि देखो जब से हमारे रावलपिंडी में एनसीए खुला उससे बहुत डिफरेंस आया है. इट्स बिन 15 इयर्स इस वाले एनसीए को, बिकॉज उसकी फर्स्ट बैच की हूँ. तो इतना डिफरेंस आया है हमारी हमारी पिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटी में. एक आर्ट की बच्चे एजुकेशन लेके ग्रेजुएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. इंटीरियर डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, टेक्सटाइल आर्किटेक्ट्स, मतलब फाइन आर्ट्स, मतलब हर डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं एजुकेशन लेके. आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स को टीच करें यूनिवर्सिटीज में. सो एक्सपोजर मिल रहा है. यूनिवर्सिटी अच्छी होना ना एक जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे यहाँ पे आर्ट की यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी पिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी. और लाहौर में तो ऑफ कोर्स एनसीए को तो 100 ईयर से प्लस हो गए हैं. तो यू नो हाउ लाहौर की कल्चर ऑफ आर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. या इवन कराची आपने शायद सुना होगा, कराची में बहुत ज्यादा. वैली, इट्स रियली बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा. लाहौर में बीएनयू है, एनसीए, दो इतने स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज हैं. या सो मजमीन, मुझे बताना कि आपका काम जो है पेंटिंग के हवाले कोविड में कैसा गया है, क्योंकि इस साल आप कोई एग्जीबिशन तो नहीं कर सके होगे. एक्चुअली जो हमारे एग्जीबिशंस हुए ना, they were more visual exhibitions. like हम उनको फोटोग्राफी करके पिक्चर्स भेज रहे थे एंड they were putting it up on the online galleries. क्योंकि आपने नोटिस किया आयशा, ऑनलाइन सिस्टम बहुत कॉमन हो गया है ना. इट्स बिकम वेरी बिग दी ऑनलाइन. हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी, तो उससे ये है कि हम पिक्चर्स खींच के भेज रहे हैं, वो उनके पेजेस पे लग रहे हैं, वहां से सेल हो रहे हैं, हम पैक करके क्लाइंट्स को भेज रहे हैं. तो वो शुक्र है कुछ ना कुछ चलता रहा. एंड लोगों ने बहुत अपने घर रीडेकोरेट किए इस पेंडेमिक में. एवरीबडी हैड लॉट ऑफ टाइम. या माशाल्लाह से आपकी पेंटिंग्स तो बहुत हॉट केक्स की तरह सेल होती हैं भाई. मैंने खुद देखा है, कनाडा जा रही हैं, लंदन जा रही हैं, मतलब हाँ थैंक यू, फैंटास्टिक जॉब. ये भी जिस क्लाइंट की है ये कल यूएस से जानी है. अच्छा अच्छा. I'm just using this as a backdrop right now. Oh, अच्छा. चलिए, lovely. Thank you, Amal. I just saw her comment. So sweet. Thank you so much. So मैंने देखा है कि आपने अपना पेंटिंग का स्टॉल भी कुछ इवेंट्स पे रखा था. तो वहां पे कैसा रिस्पॉन्स होता है जब लोग इवेंट्स पे आते हैं? यहाँ पे इस्लामाबाद में या अच्छा रहता है. इट्स गुड, यू नो, लाइक आर्टिस्ट कम्युनिटी वो कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है माशाल्लाह. आर्ट कलेक्टर्स काफी सारे हैं इस्लामाबाद में. दे लव कलेक्टिंग आर्ट, दे लव कमिंग टू दी थीसिस शोज एंड दी अदर शोज. दे लव बाइंग कैलीग्राफीज, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, रियलिज्म, सब कुछ. मतलब यू नो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं. अब मैं विच इज लवली टू सी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो 15-20 इयर्स अगो आर्ट की इतनी पहचान इस्लामाबाद पिंडी में थी. बहुत डिफरेंस आया है. लोग बहुत आर्ट कलेक्टर्स बन गए हैं. दे लव कलेक्टिंग आर्ट, दे लव कलेक्टिंग द पीसेस, दे लव वो कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ बातें कर रहे होते हैं, यू नो, कि हमें ये पीस चाहिए. वी वर थिंकिंग टू बाय दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो बड़ा मजा आता है. किसी के घर जाओ तो आपके साथ एक और बड़े नोन आर्टिस्ट का काम लगा हुआ होता है. तो वाओ, आई एम लाइक अमेज्ड, क्योंकि फाइन पीपल डू कलेक्ट आर्ट नाउ. तो इट्स रियली गुड एक्चुअली माशाल्लाह. हाँ, नहीं बहुत अच्छा है यार. दिस इज ग्रेट. और अच्छा है कि पाकिस्तान में पीपल आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग एंड यू नो इन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है, विच इज ग्रेट. कि हर किस्म का पैशन अब लोग ज्यादा अपना खुल के पैशन, पहले तो होता था पहले के वक्तों में लोग बहुत सर्टेन चीजों पे ही अपना फोकस रखते थे. बट नाउ यू नो इन ऑल काइंड्स ऑफ फील्ड्स रिगार्डिंग आर्ट्स वगैरह सब में अब लोग बहुत इवॉल्व और ग्रो करते जा रहे हैं विद टाइम, विच इज फैंटास्टिक. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जरूरत भी थी ऐसी बहुत जरूरत थी. बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम हो रहा है. इट्स अमेजिंग जितना मजे का काम रोजाना देखने को मिलता है ना. इट्स अमेजिंग. So what are your next plans? बस trying to figure out few exhibitions in the next this coming year इंशाल्लाह. अभी मेरा एक न्यूयॉर्क गैलरी के साथ एग्जीबिशन है. It's again an online exhibition. I will be giving them the pictures and then you know it will be going into their websites and everywhere.
और एक हम लोग खुद कैलीग्राफी एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, तो बस। अच्छा, दैट्स लवली। वो कब कर रहे हो? हाँ, Inshallah, very soon. We are trying to figure it out which gallery we should select. I have a bunch of 6 artists इनको मैंने gather किया है for the exhibition, और वो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो एक एग्जीबिशन हमने अभी लॉन्च करना है, उसकी डेट्स और सब कुछ डिस्क्लोज करना है, अभी किया नहीं है। Oh wow, that's so exciting. I would love to visit your art exhibition. Inshallah, definitely. Thank you so much. My brother and my family are messaging. Thank you so much for your appreciation. तो और माजबीन, क्या 2021 के लिए भाई क्या प्लान है? 2020 तो अब खत्म होने जा रहा है और अल्लाह करे बस अब खैरियत से सबके लिए खत्म ही हो जाए। तो बिल्कुल। नए साल के लिए कोई नए गोल्स? बस I just want to stay as positive as possible, and just try By the to way, help out positive people. is the new negative word these days. I hope you know I what I'm swear. talking about. Yeah, I know. अब तो कोई कुछ पॉजिटिव बोलता भी यार, बी पॉजिटिव, तो दिमाग में आ जाता है कोरोना वाला बी पॉजिटिव तो नहीं बोल रहा। अल्लाह माफ करे। बस अल्लाह खैर करे। आई जस्ट होप कि ये टाइम जल्दी अच्छा हो जाए, गुजर जाए, सबके लिए थोड़ी आसानी हो। आई जस्ट इट्स अ वेरी बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम, नो डाउट। आई जस्ट होप नेक्स्ट ईयर brings in much more peace. Inshallah, yeah, we're all hoping for the new year to bring a lot of peace, harmony, and joy for everyone. बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब आपके न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो? अभी कोई नई पेंटिंग्स हैं पाइपलाइन में? किसी को न्यू ईयर गिफ्ट भेजना है या किसी को क्रिसमस का कुछ भेजना है थीम बना के? बस अभी, हाँ बिल्कुल, अभी अपने एग्जीबिशन कुछ ऑर्डर्स हैं जो कंपाइल कर रही हूँ साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दोज। सो एंड ऑफ कोर्स विद द फैक्ट दैट सबकी टाइमलाइंस होते हैं, आई गिव देम लाइक 15-20 days of timeline to complete the orders. So like a sugar, the clientele are very supportive, they understand, they cooperate, they keep seeing processes, so they're very comfortable. So yeah, going well, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ग्रेट। किसी ने आपके लिए लिखा है when you started writing Allah's names when you were in school. I remember when you started writing Allah's names when you were in school. अच्छा, इतना पहले से आप This स्कूल is our से mother. आप स्कूल से माशाल्लाह लिख रही थी। बाय द वे बिल्कुल बिल्कुल। सलाम जब मैं to आई mom, वाज इन, अस्सलाम आई थिंक आई वालेकुम। वाज must be like a 6th grader or a 7th grader. I used to be so indulged with the fact कि अल्लाह के नामों में इतना ज्यादा मेरा ध्यान था कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने जाके मेरे लिए शीशे के 100 पीसेस कटवा के लाए। यानी सेट के तुम शौक है तो तुम लेट के साथ तुम अल्लाह के नाम सारे एक एक करके एक एक शीशे पे लिखो, और उनकी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हें समझ आ रही है ना, उसके पीछे उसको ड्रॉ करो। तो जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे अल नूर है, राइट? मुझे अभी तक ये याद है इसलिए क्योंकि मेरा सबसे मेरा फेवरेट यही था। तो उसके पीछे मैंने सूरज बनाया, और सूरज की सारी किरणें नीचे को आ रही है, नीचे अल नूर लिखा हुआ है, तो वो मुझे याद रह गया हुआ है। और द क्रिएटर याद रह गया हुआ है कि व्हेन द फ्लावर देयर इज अ सीड, द नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर ऑल ब्लूम्ड अप। तो एक रिलेशन, तो वो मैंने आज तक संभाल के रखे हुए। और ये शुरू इसी तरह ही हुआ, कैलीग्राफी से बहुत ज्यादा शुरू से ना, बहुत ज्यादा कुछ रिलेशन सा था जो कभी समझ नहीं आया हाउ टू एक्सप्लेन इट, there was no explanation to it. It was just like I just needed a pump. Somebody had to push me to the side of doing it as like a complete profession instead of continuing it as a hobby or something I do part time. ऐसा नहीं चाहती थी मैं। बट वो आई थिंक देखो अल्लाह की करनी है कि एनसीए गई, वो एनसीए में कैलीग्राफी नहीं इतना कुछ रिस्पेक्ट देते और इतना इसको अप्रिशिएट नहीं करते। दे जस्ट वांट यू टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल। बट वो टीचर्स मिल गए, राइट पाथ मिल गया, उनने रास्ता दिखाया, उसको मैंने पकड़ लिया। तो आई थिंक दैट इज हाउ इट जस्ट स्टार्टेड ऑफ। आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक, आई थिंक इट्स अल्लाह's प्लान। आई फील लाइक he was the one who had this plan for me. I just had to indulge myself into it. बिल्कुल बिल्कुल। So ये yeah, is but best I plan feel लेकिन I'm very honored. I feel like God, I'm so thankful to God कि I can just portray His message everywhere. I just hope I don't do any wrong. कोई गलती हो जाती है, I always ask for forgiveness कि कोई जबर से गलत कहीं लग जाए। One has to be very careful, तो बस मगर बहुत कोशिश होती है कि ऐसी गलती ना हो। But I'm very grateful. माशाल्लाह, that's brilliant। बल्कि मुझे एक ड्रामा याद आया जो हाँ काफी जी। इंस्पायरिंग रहा है लोगों के लिए भी। इट वाज कॉल्ड अलिफ, जिसमें हमजा अली अब्बासी भी था। और उसमें भी काफी, खैर वो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं देखा, बट जहां तक मैंने देखा इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग। और उसमें भी काफी कैलीग्राफी को और पेंटिंग को हाईलाइट किया गया था। तो कुड यू रिलेट टू दैट ड्रामा एज वेल?
I do. I have watched it like 3 or 4 times. I'm addicted to it because I actually मैं पूरा drama इतना enjoy नहीं करती. The part where his story comes in about his parents. I'm not a fan of that part. I love the part with the dada and the kid has a relation, and how he tells him कि our relation with God is so strong कि हम कैलीग्राफी जैसे वो करते हैं तो उनको लगता है उनका रिलेशन जो अल्लाह के साथ है वो इतना कोई स्ट्रांग है कि वो कोई भी चीज तोड़ नहीं सकता. That is how I feel as well. I'm not a very religious person in show. I would never say that I'm super religious or I follow like but I just try to be as much as I can, praying wise, everything else wise. But कुछ चीजें आपकी within हो जाती हैं कि आप उनको निकाल नहीं सकते. I listen to such things and I get super emotional. And those lines where he says, कि मैं अगर 16 hours अल्लाह का नाम लिखता हूँ तो मैं कैसे गुमान ना करूँ, मुझे जानता नहीं है. तो वो चीज ने इतना मुझे टच किया. वैसे oh my God, that is how I feel as well कि I think God knows me, So it's a very beautiful relation, I swear. तो वो ड्रामा बहुत खूबसूरत है. शेरज़ाद बहुत खूबसूरत ड्रामा है. If you've seen it, मायरा खान का ड्रामा था. वो भी मैं इतना शौक से देखती हूँ. Amazing. उसका भी एक how she gets in touch with how Allah is the Almighty, is so beautiful. His personality with Allah के जो हमारा माशाल्लाह जो उनका एक पूरा impact है human race के ऊपर, वो कैसे वो अपने ऊपर करती है कि she becomes religious and she becomes so close to Allah that she talks in a way that she becomes like a grounded person, which she was not in the beginning ना, जिस ड्रामे में दिखाते हैं. बिल्कुल, it had a huge lesson behind it. वो ड्रामा मैंने religiously follow किया था और मैंने खुद भी वो दो दफा तो मैंने वो complete किया हुआ है. Wow, अच्छा है. It was such an eye opener. It is. और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, आप इन चीजों को इतना अप्रिशिएट करते हो ना, तो आपसे ये बातें करने का मुझे हमेशा मजा आता है, बिकॉज आप इतना इन चीजों को अप्रिशिएट करते हो. यू ऑलवेज सच अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आयशा. लाइक सिंस आई मेट यू ना, आई लव योर पर्सनालिटी. Oh, thank you so much, Majubin. It means a lot. See, that's why the name of my show is Positivity, because I love tea and I love this positive chat. And that is you. That is so you. That is how you are. You're a very positive person, always smiling, always helping. You मतलब कि बहुत अच्छा दिल है यार. मतलब अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी रखे. बहुत आपकी प्यारी नेचर है. And I'm honored to know you seriously. Oh, Ameen, thank you यार. रुलाद होगी आप मुझे शो पे, मुझे टिश्यू पेपर पड़ेगी. नहीं seriously, पता है मैं आपको अपने I'm telling this with all my heart that you have a very beautiful personality. Seriously. Thank you, darling. It means a lot, and I'm also honored to have a wonderful friend like you and the first guest of my show. मतलब क्या जबरदस्त. I'm so honored. Thank you. अच्छा माजबीन, तो मुझे ये भी पूछना था कि आपने कुछ दिन पहले अपने प्रोफेसर के बारे में पोस्ट किया था जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा उनका रोल था, तो उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर करें. वो कहाँ मिले आपको और कैसे ये हुआ? एक्चुअली वो भी हमें एनसीए में मिले थे. एनसीए के 3rd ईयर में मिले थे. गौहर कलम नाम है, गौहर रशीद कलम उनका नाम है. वो बहुत ही कोई वर्सेटाइल पर्सनालिटी, जैसे होते ना कैलीग्राफी टीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, रिलीजियस होंगे, आपकी गलतियों को गलतियां बनाएंगे. मतलब उनकी ऐसी पर्सनालिटी जैसे अपने आप किसी ग्रैंडफादर से मिल रहे हो. वंडरफुल पर्सनालिटी, वेरी वार्म हार्टेड, ऐसे प्यार से कान खींच देना और कुछ कहना तो कुछ मतलब गुस्सा नहीं करना, बस काम जो गलती हो गई चलो ठीक है नया बनाने की कोशिश करो. So it was amazing when I was with his student. I think उनकी books ने और उनकी personality ने, that is where I say कि that person is the main person जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं calligraphy पाऊँ रख सकूँ. मैं उनकी तरह का काम मेरा बिल्कुल उस तरह नहीं है, but there is something on the other which ends up relating to his compositions because of the fact that I was so inspired by him. और बहुत ही कोई नोन पर्सनालिटी थी, सच अ नाइस पर्सन. उनकी डेथ ने बहुत लोगों को इम्पैक्ट किया. आई एम श्योर कि आपका तो उनके साथ इतना डीप कनेक्शन था, एंड मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जो हमेशा जुड़ा रहेगा, बिकॉज वो भी मतलब आर्टिस्ट और वो आपके ऑफ कोर्स टीचर भी रहे इस फील्ड में, तो मतलब दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. बिल्कुल यू एब्सोल्युटली राइट. तो ये आपने किस एज से शुरू किया आर्ट्स में? मतलब शुरू से या बचपन से यू वर गुड एट दिस सब्जेक्ट, या पहले आप कुछ और कर रहे थे एंड देन आपने फिगर आउट किया कि दिस इज आई वांट टू गो टुवर्ड्स आर्ट्स, या शुरू से ही यू वर श्योर दैट दिस इज मी? एक्चुअली मैं कभी भी किसी और सब्जेक्ट में अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरा कोई किसी तरह ध्यान नहीं लगता था. बस पेंटिंग वाज एवरीथिंग. म्यूजिक, आर्ट,
anything to do with dancing, like all sort of art subjects था, मतलब कि इन चीजों में इतना कोई शौक और वो गुमान था ना कि बस होता था कि बस लाइक हारमोनियम सब कुछ, सितार वगैरह सब कुछ सीखा, और इतना शौक था म्यूजिक करने का, आर्ट के डिपार्टमेंट्स में इंडल्ज करने का, शुरू से पेरेंट्स ने बहुत इन्वॉल्व रखा इस चीज में। और बस ओ लेवल्स में जब मुझे याद है, जब मैंने आर्ट में अपेयर हुई थी उस वक्त ब्रिटिश काउंसिल में बच्चे आर्ट्स में अपेयर पूरे इस्लामाबाद में हार्डली 2 या 3 या 4 बच्चे होते थे। दिस इज 2003 आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज 18 इयर्स अगो। अच्छा। सो 18 years ago आप सोचे, उस वक्त मैंने ब्रिटिश काउंसिल में जाके बीइंग ओनली स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स मैंने एग्जाम दिया, आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन आर्ट्स, दैट वाज अ बिग मोटिवेशन। और फिर आगे ए लेवल्स भी आर्ट्स में किया, उसमें भी माशाल्लाह ए ग्रेड आया, वन वेरी वेल, देन आई वेंट टू एनसी। तो आई थिंक वो पूरा एक प्रोसेस था ऑफ लर्निंग एंड यू नो फाइंडिंग माय सेल्फ कि आर्ट मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, एंड आई एम स्टिल फाइंडिंग माय सेल्फ, आई थिंक इट्स स्टिल नॉट ओवर। That's lovely, yaar. That's how you keep growing and evolving. Yeah. और फिर आपको नए नए आइडियाज भी काम के साथ साथ आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। जब एक चीज में आपका पैशन होता है तो वो खुद ब खुद भी अंदर से आपके नए नए आइडियाज जनरेट होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ऑल्सो आई नोटिस्ड कि आजकल के दौर के जो पेरेंट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव। लाइक उस वक्त पहले के टाइम पे इतना ज्यादा पेरेंट्स भी मतलब बहुत वो आपके लिए एक सर्टेन कैटेगरी रखा करते थे, कि डॉक्टर ही बनना है या पढ़ लिख के पायलट ही बनना है या कुछ ऐसा ही बनना है। बट अब के जनरेशन में मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है कि अच्छा है कि यू नो लोगों के दिमाग खुल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को अब काफी उनके इंटरेस्ट की चीज करने दे रहे हैं। दैट्स आल्सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स कि शुक्र है पेरेंट्स भी इवॉल्व हो गए हैं कि अब बिल्कुल, अगर दैट्स वंडरफुल टू सी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत जरूरी है एक्चुअली। देखो ना पहले औरतों को, जैसे आपने देखो कितने मजे का ये स्टार्ट किया, दैट इज व्हाट आई एम लविंग अबाउट इट, कि आप यू विल बी हेल्पिंग सो मेनी वुमेन with all your wonderful talk shows and your wonderful positive notes on them। बहुत मजे की बात है, और I'm sure आपके आगे भी इतने मजे मजे की सारी discussions होंगी। लाइक आई एम सेइंग कि हम लेडीज को, औरतों को काम करने की, देखो इतना कितना प्रॉब्लमेटिक था आज से 10 years ago भी, कि बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट और अ मेकअप आर्टिस्ट, और इन जैसे मैं फाइन आर्ट्स में हूँ, being an architect, going to people's houses, designing their houses, interior design, setting their houses, वो बड़ा डिफिकल्ट थे their paths। but शुक्र है parents are now, parents are now being super supportive कि if you want to step out of the house, step out of your boxes, just in a way that of course trustworthy तरीके से have that security and do that। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफरेंस आया है सोसाइटी में। it really makes a difference, I swear। और कितना देखो हमारे आगे पीछे कितने अच्छे डिजाइनर्स हैं, जो औरतें हैं सारी, you know, architects हैं, interior designers हैं, look at the amazing hairstylists and makeup artists, they're so fabulous, everybody, because they're coming out of the box, people are finding out, they're becoming popular। हमारी औरतें are equally good as men। Seriously। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और हैव यू नोटिस्ड कि अब जो औरतों को अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट मिल रही है उनके फील्ड में, वो भी कितना अमेजिंग है। पहले के वक्तों में कहाँ ये सब कुछ था। तो आई एम सो ग्लैड कि लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लोगों की सोच ग्रो कर रही है। और आई एम सो ग्लैड कि women are stepping out and they are doing so well in their fields, like you just said, hairdressers, makeup artists, और भी different fields की जितनी भी खवातीन हैं, they are doing an amazing job यार। Yeah, supportive husband, my husband's commenting नीचे कि supportive husbands, yes। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। आतिफ भाई is goals। और कोमल का भी कमेंट आया, थैंक यू कोमल, शी इज अ लवली हेयर ड्रेसर, शी डिड माय Oh yeah, I'm a big fan of her work। Inshallah, I'll visit her someday with you। Yeah, so thank you आतिफ भाई for supporting us। तो और माजबीन, आपका अब क्या नेक्स्ट हम देखने वाले हैं? कौन सा अमेजिंग अब आपका पीस आने वाला है सामने भाई? समथिंग दैट यू आर वर्किंग एट राइट नाउ। I'm just trying to work with relations right now actually। मैं अपनी birds बनाती हूँ ना, you must have noticed कि जो मैं birds परिंदे पेंट करती हूँ calligraphy के साथ, they have a very symbolic meaning towards किसी ने, 2-3 लोगों ने सवाल भी पूछा था कि आपका birds का relation क्या है। It's a very symbolic reason। It's like how families and kids put together। अब मैं उनकी फॉर्मेशंस बनाती हूँ कि हमारा बॉन्ड किस तरह स्ट्रॉन्ग है, वो बर्ड्स के थ्रू पोर्ट्रे करती हूँ। दे हैव नो आईज, दे ऑब्जेक्ट्स फॉर मी।
So this is like I'm trying to work on relations and bonds actually. उन पे काम कर रही हूँ आजकल. And color composition थोड़ी सी change करी. So neutrals की तरफ जा रही हूँ. Because I'm a color person, you must have noticed I love color. But I want to Yeah. play with neutrals as well. I want to change my. आपकी मैंने हाँ रिसेंट एक पेंटिंग भी देखी थी जिसका बहुत डीप मैसेज था. इट वाज Yeah. अबाउट द पेंडेमिक गोइंग ऑन और उसमें भी बर्ड्स थी और आपने उसमें ये शो किया हुआ था कि यू नो यू वर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स वो ऊपर से वो बारिश आ रही है और बर्ड्स हैं तो वो उसका क्या मीनिंग था. आई जस्ट वांट टू नो कि जो मैंने फील किया क्या ये वही मीनिंग था. आप बताओ आपने क्या फील किया? मैंने ये फील किया कि you were just trying to show कि how helpless we are as a you know creation. हम हमारे पास तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है because we're so helpless. It's the God is the superpower और अल्लाह चाहे तो मतलब अल्लाह कुछ भी कर सकता है और हम इंसान कितना वीक हैं. We all need Allah in our lives obviously. तो मुझे ये उसका मैसेज समझ में आया कि आप वो कन्वे कर रहे हो. Because the birds look a bit, you know, like helpless और ऊपर बारिश हो रही है. That's what I thought. अब आप बताओ उसका क्या मीनिंग था? बिल्कुल ऐसी था. एक बर्ड जो है वो थोड़ी हेल्पलेस थी जिसके ऊपर बारिश ज्यादा गिर रही है, वो थोड़ी भीग रही है एंड शी इज गेजिंग. मेरा ना कनेक्शन ऑफ गेज भी है, मतलब आई कांटेक्ट जो होता है एक इंसान का दूसरे इंसान से, वो बर्ड्स के थ्रू मैं दिखाती हूँ. वन बर्ड इज लाइक गेजिंग एट द अदर बर्ड and the other bird is not gazing at this bird, is looking up in the sky, because he wants to see the God through the clouds and tell him that we want hope. We still know you're there, you're going to help us. Yeah. So वो जो gaze है वो इसी तरह travel कर रहा है कि उसकी नजर खुदा की तरफ है, इसकी नजर इसकी तरफ है, कि हमारी hope खत्म नहीं हुई. We are still fighting and we are going to keep fighting till we get better and till this corona ends. Corona was the main. We'll come out of it stronger, inshallah. Yeah, inshallah. We will, definitely. So, माजबीन और पेंटिंग में क्या कोई नए टेक्निक्स हैं जो भी आप और भी कुछ शुरू करोगे? ट्राई करती रहती हूँ, काफी कुछ ट्राई करती रहती हूँ. जी बताओ. What do you enjoy the most painting में? Like what do you enjoy the most? Very spontaneous paintings actually. जो पेंटिंग सुपर स्पॉन्टेनियस होती हैं दोज आई लव, जिनके अंदर जैसे कि ये पेंटिंग्स है. दीज पेंटिंग्स आर लिटरली कंस्ट्रक्टेड इन हार्डली 2 to 3 days because they're super spontaneous. I keep moving my brush in one way and anyway that is how I don't stop myself कि वो मोशन ऑफ जो उसका चल रहा होता है ना वो खराब ना हो जाए. तो आई फील लाइक वो बस उन्हीं में आई एम वर्किंग ऑन कॉम्पोजिशंस, आई एम वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज एंड आई लव पेंटिंग स्पॉन्टेनियसली. आई मतलब पेंटिंग किसी पेंटिंग में फंस जाऊँ ना अगर, तो उस पेंटिंग को फिर 2-3 दिन के लिए साइड पे रख देती हूँ. I don't look at that painting for some time because it really bothers me if I can't fix it. That's interesting. So yeah. Thank you, Fari. So yeah, I really wanted to start off my show with you. मैंने कहा मैं आज माजबीन को बुलाऊंगी और आज उसकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे. बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच. और आपने मेरा वो देखा होगा फोरम भी एक है ना, मॉडर्न आर्ट सॉल्यूशंस, आई थिंक आपने फॉलो किया होगा. Yeah, modern art, of course. I want to talk to you about that as well, that you are also the founder of Modern Art Solutions. So basically उसमें आपका क्या, उसमें आप क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप उसमें पेंटर्स के राइट के लिए भी आप लोग फाइट करते हो कि जिनकी पेंटिंग्स कॉपी हो जाती हैं. तो थोड़ा सा उसको प्लीज एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज मॉडर्न आर्ट सॉल्यूशन अबाउट. एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइट द प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम. जो प्लेजरिज्म हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता. अब्रॉड यू कांट कॉपी एनीबॉडीज वर्क, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट इवन डिजाइनर्स. हम लोग डिजाइनर्स के कपड़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं या फिर हम समझते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है. सो उनके लिए तो आई होप कि कोई राइट शुरू हो जाए. वी जस्ट ट्राइंग टू फाइट दिस इन अ वेरी स्मॉल स्केल कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है और somebody is facing that issue, तो being three important artists, जो हम 3 लड़कियां हैं, किरण, मिनाहिल and me, हम उस चीज को फाइट कर रहे हैं just to make sure people stop themselves from doing it in a very polite way, not harassing them, not disturbing them in any way, just telling them कि please इस चीज को इस तरफ मत अपने आप को लेके जाएं, अपने कॉम्पोजिशन को खुद डेवलप करें, अपने काम को खुद डेवलप करें. और मतलब दैट इज आवर मेन एम. अल्लाह का शुक्र है हमने जितने लोगों से आज तक बात की, जितना हम लोगों ने रिपोर्ट्स भेजी, हम बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ आप कह लें डिफिकल्टी इन द मिडिल, जहाँ पे कोई लोग अगर हमारे से दिल उनका खराब ना हो जाए कि why are they contacting us. And also one thing that we 3 ladies are trying to interview other artists.
इंटरव्यूइंग देम, अंडरस्टैंडिंग द आर्ट जर्नी, कि उनकी आर्ट जर्नी क्या रही। अभी हमने सर अल-फिरदौस का इंटरव्यू किया था, वेरी नोन आर्टिस्ट फ्रॉम लाहौर, ही इज वेरी फेमस। वो जो कपड़ों के ट्विस्ट बनाते हैं, उनमें अल्लाह के नाम लिखते हैं। Yeah. तो अभी उनका इंटरव्यू किया हमने। हम ऐसे ऐसे और आर्टिस्ट के इंटरव्यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द जर्नी। तो इट्स आप कह लो कि एक मोशन, हम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। That's lovely, yaar. As long as you're making a difference in people's lives, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर Oh, किसी को Sadaf is कुछ here. Hello, Sadaf. Thank you. So sweet of you. Sadaf Hi, Kamal, Sadaf. their Rose wife. Yeah. So sweet. Hi. I love her dressing sense. She's always like, you know, बड़े मजे मजे की इनकी dressing sense होती है, her sunglasses and her jackets and all of that. हाँ बिल्कुल, she is glamorous, माशाल्लाह. She has beautiful hair. I love her hair. हाँ. तो माजमीन, ये मॉडर्न आर्ट में भी, is it also like a academy जहाँ पे आप lessons भी देते हो, या ये उसी से related है? अभी नहीं, अभी हमने इस तरह का कुछ शुरू नहीं किया. वी जस्ट ट्राइंग टू डू इट लाइक यू नो, वी कम ऑन ऑनलाइन, डिस्कस विद पीपल. हम आर्ट के क्वेरीज देते हैं, उनके जवाब देते हैं. दे हैव क्वेश्चंस अबाउट आर्ट, दे वांट टू अंडरस्टैंड. इफ यू वांट टू बाय सम सॉर्ट स्पेसिफिक मटेरियल, हमें कहीं से मिल नहीं रहा, आप गाइड कर देंगी. हमें एग्जीबिशंस करने, हमें वी डोंट नो वेयर टू गो, which door to knock open. सो नो स्टफ लाइक दैट. तो हम उन चीजों में उनको हेल्प आउट करते हैं. किरण, मिनाइल और मैं ऑनलाइन कभी कभी आ जाते हैं एंड लोगों को आंसर्स देते हैं. They're such nice people. People come up with 50-60 questions altogether. आहिस्ता आहिस्ता we gear up and answer them. और it's nice, it's fun actually. बस just trying to create a small platform. It's a very tiny platform right now. You must have noticed, not so big right now. मगर हम माशाल्लाह हम तीनों आर्टिस्ट ने बड़ी अपनी जगह बनाई हुई है, तो हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से ज्यादा उसको मोटिवेट करते हैं. Great, thank you, Sadaf. Hugs back to you. तो बल्कि इंशाल्लाह आएंगी ना सदफ, आपसे मिलाऊंगी आयशा जब भी इस्लामाबाद नेक्स्ट आएगी. I also have to meet her. जरूर जरूर, I'd love to meet her also and would love to have her on the show as well. उनकी भी हम जर्नी सुनना चाहेंगे कि माशाल्लाह wonders for herself, so we would all love to know about her journey and her story. थैंक यू किरण, मैं भी पढ़ी थी अभी. थैंक यू सो मच. अच्छा माजबीन, तो फिर इंशाल्लाह I'll be signing off in a bit. तो जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप मुझे ये बताओ कि अनदर अभी एक क्वेश्चन आया था, वो मिस हो गया. आई डोंट नो इफ इसमें लाइव में स्क्रॉल अप कर सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं. किसी ने मेंटल हेल्थ का फिर से पूछा है एंड उसने ये पूछा है कि वही मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट है. जैसे हमने पहले भी ये बात की थी, आई थिंक उन्होंने तब सुना नहीं होगा जिनका भी कमेंट था, कि हाउ हैज इट इम्पैक्टेड ऑन पीपल, हाउ डज इट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ दिस आर्ट. तो जैसे अगर किसी को कोई डिप्रेशन है या कोई एंजाइटी है और वो पेंटिंग शुरू करता है, सो डू यू थिंक कि ये उनके लिए बहुत हीलिंग हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. थैंक यू मॉम. मॉम का भी मैसेज आ गया है. सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. ना प्लीज पता आंटी, अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल. पता देखिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे अगर आपका दिल कर रहा है, यू वांट टू पेंट, यू नो, यू वांट टू टेक आउट सम सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस ऑन टू द कैनवस. Just do what you feel like. Sometimes it really helps you. It really, and sometimes it ends up being such a beautiful art piece. अगर मैं आपको एक जर्नी एक्सप्लेन करती हूँ, आपको मैं लिंक भेजूंगी, आप देखिएगा. मैं कल उनकी स्टोरी से बड़ी इंस्पायर हो रही थी. उनका नाम मरियम है. शी इज ऑन इंस्टाग्राम, नोन आर्टिस्ट माशाल्लाह. नाउ शी इज फ्रॉम कराची. बड़े मजे का उनका काम है, बड़ा पॉपुलर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. न्यू आर्टिस्ट एक्चुअली. उनने एक थॉट प्रोसेस डाली अपनी पेंटिंग्स में कि जी मर्द हमें गेज करते हैं. Yeah. और उनको ये चीज इतनी इम्पैक्ट कर गई कि वो घर आई और उन्होंने अपना एंगर कैनवस पे निकाला. अच्छा. और उनने अपने कैनवस में निकाला इस तरह कि उनने आंखें बनाई और चेहरे बनाए औरतों के जो वापस आपको गेज कर रही है. अच्छा, तो मैं आपको भेजती हूँ, आप देखना. वो इतनी पॉपुलर हो रही है माशाल्लाह. पीपल आर बाइंग हर वर्क, आल्सो इन्फ्लुएंसर्स आर बाइंग हर वर्क. पीपल आर लविंग द आइडिया. तो वो एक देखिए थॉट प्रोसेस है ना, कि आप एक चीज से हर्ट हो रहे हो और आपको बस निकालना है. तो उसने कहा बस कैनवस पे निकालती हूँ. तो उसने किया और उसका वो थॉट प्रोसेस इतना हिट हो गया था. पीपल आर बाइंग हर आर्ट नाउ बिकॉज दे लव द फैक्ट वो औरतों की गेजिंग आईज हैं और वो एक दूसरे को स्टेयर कर रही हैं. कहीं और देख रही हैं, आप कैनवस पे देखोगे, आप यहाँ जाओगे लगेगा आपको देख रही है. वाओ यार, दैट्स तो अमेजिंग. देखिए ना, एक थॉट प्रोसेस है. आई फील है कि बहुत मजे की. आप जरूर, आप भी कर सकते हो. आपके लिए गिफ्ट यही लेके आऊंगी, कैनवस एंड ब्रशेस. आप जरा पेंट करना.
ठीक है, ठीक है. I think we should all have a painting session someday on Yeah, my we should do that. rooftop. It'll be so much fun. Yeah, I would love to take some lessons from you, yaar, on painting. Even my brother is really fond of painting. अभी उसका भी कोई question था, but somehow I think I missed it आप जरूर again. देखो क्या Can लिखा you है. I scroll will love up? to answer. Do you know how to scroll up in here? जी मैं Live देखती में. हूँ. नाम क्या है? Tough times का कोई question था, but I missed it again. 1 second. It was something like कुछ stuff. Atik, can you ask your question again, please? Afzal Technology जो है इसमें से. Atik, please ask your question again. So yeah, my brother is also into painting और उसको भी बहुत शौक है. Mashallah, he has done some amazing collections. I'll share with you as well. He's Definitely asked, has your art helped you through any tough times? Yeah, has your art helped you through any tough times? It has. No doubt it has. कैसे थोड़ा सा Like I said कि जैसे आपको कहा ना बहुत थेरेप्यूटिक होता है. तो कोई चीज आपके माइंड में चल रही है, कभी कभी आप कैनवस पे उसको डाल दो ना, तो वो कोई कभी मीनिंग निकाल देती है. Sometimes it doesn't have to be, it has to be meaningful. It's not like it has to be meaningful, but sometimes it does put in meaning. आप कुछ करते हो और आपको लगता है wow, this is something you wanted to say. तो वो चीज वर्कआउट कर जाती है. But it does, no doubt. Wonderful. Guys, if you have any questions before we go, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं माजबीन से, प्लीज गो अहेड, क्योंकि हमारी बातें तो ऑन गोइंग चलती रहती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी. सो अगर किसी और ने और इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, ऑल द फ्रेंड्स, आयशा के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. सो स्वीट ऑफ यू फॉर राइटिंग सच प्रीटी नाइस थिंग्स टू अस. वो पढ़ रही थी. Thank you so much. Yeah, I think कुछ comments miss भी हो गए हैं, but I'm gonna go through them inshallah. हाँ, बिल्कुल. Definitely. So what are you going to do now? Sunday की कोई खास plans? बस कुछ भी नहीं. Sunday is try to relax because the whole week I'm working like a complete workaholic. So yeah, Sunday I try to peace out for some time. काम नहीं करती, अवॉइड करती हूँ. काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता होगा. एक दिन में आप कितने पीसेस कर लेते हो तकरीबन? आयशा, एक दिन में अगर मैं 4-5 आवर्स में काम करती हूँ ना, तो काफी दफा 50-70% ऑफ द पेंटिंग खत्म हो जाती है. काफी दफा पूरी पेंटिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पेंटिंग आई एम डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टाइल आई एम डूइंग. But then again, it's the winters, the canvases, the paints, the pigments they sweet time to dry. तो इसलिए वो फिर चीजें प्रोसेस के हिसाब से ही होती हैं. इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट्स गुड. व्हाटएवर आई डू दैट डे, जो एक दिन पहले मैंने किया होता है, अगले दिन मैं जरा सुकून में रहती हूँ कि चलो मैंने इतना काम तो कर लिया ना, तो अच्छा रहता है, which is wonderful. Great. My brother is saying that he loves this part of the show, that we women are empowering each other. That's what we all that's so do. sweet. Thank that you. is thanks to you, Aisha. That is your, like I said, beautiful thought process आपकी, माशाल्लाह, जो आपने implement की, आपने मेरे से start किया. I'm so honored कि आपने अपने मुझसे मेरी जर्नी पूछी, मेरी आर्ट की बैकग्राउंड पूछी. बहुत मजा आया शेयर करने का भी. I love sharing my story because Allah का शुक्र, I just want to help other people around me. If they want to get into this, they should definitely do. Just follow your instinct, just follow your heart, I feel like. बिल्कुल ऐसे ही. And when you follow your heart, God opens ways in which you can't even imagine. आपके ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आप खुद सोचते रह जाते हैं. So I feel that you should always put your heart into it. Whatever you want to do in life, just put your heart and soul into it. And it works out great. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है. जब किसी चीज को भी हम दिल से शिद्दत से करते हैं ना, ये तो मुझे डायलॉग याद आ गया, ओम शांति ओम का. प्लीज बोल दे. किसी चीज को पाने के लिए तो पूरी कायनात तुम्हें मिला देती. पर ऐसा ही है. जो चीज आप पैशन से, आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जबरदस्ती कहूँ कि यार कुकिंग सीखो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सीख तो लोगे, बट यू वोंट फील दैट ड्राइव. और वो चीज आप कर लेंगी, पर आपके अंदर से वो पैशन नहीं आएगा. सो आई फील कि हर किसी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. एंड एवरीबडी इज गॉड गिफ्टेड, एवरीबडी इज अ individual person, and सबका अपना एक होता है. You can't force anyone and you can't judge anyone as well. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी. सबका अपना एक वो होता है, सारा एक्सपीरियंस होता है.
तो हमेशा पैशन बस फॉलो करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. वेदर इट्स फैशन डिजाइनिंग, वेदर इट्स आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, एनीथिंग यार. अगर आपका पैशन होगा, यू विल डू वंडर्स. लाइक यू आर तेरिश का सच एक अ गुड सवाल है. एग्जांपल. या Ever think you will introduce different choreography style? I think I can't say this. पता है क्यों? क्योंकि एक चीज में इतना ध्यान मेरा चला गया है ना हरूफ की कॉम्पोजिशंस में, कि शायद कुछ और करूंगी तो शायद वो आयशा वाली बात दिल नहीं लगेगा. वो एक चीज से दिल आपका लग जाए ना, आपको लगे कि यार दिस इज यू, दिस इज व्हाट यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड, तो फिर वो चीज आप अगर छोड़ो ना, तो आपके काम में वो खूबसूरती नहीं आएगी, ना आपको अच्छी लगेगी, ना किसी आपकी ऑडियंस को अच्छी लगेगी, तो फिर मजा ही नहीं आता. क्योंकि ये देखो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. आप जो करो, अगर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, आपके आगे पीछे के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, तो आप और मोटिवेट होते हो, वाओ आपने जो किया वो ठीक था. तो बिल्कुल. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई फील लाइक ये हरूफों किसी कॉम्पोजिशन से, दैट इज व्हाट आई एम. That is what I try to show, through I break these surahs into haruf, and I write them, and I know the meaning, the clients know the meaning, so it's what it is. That's amazing. Have you done you've done Ayatul Kursi as well, right? मैंने आपकी देखी थी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जी, mashallah. So yeah, no, I'm honestly really proud of you. It was lovely to have you over. बहुत मजा आया. And it was थैंक यू really आयशा. good chatting with you. मैं तो बहुत मजा आया मुझे आपसे बातें करके, क्योंकि अपनी बातें शेयर करना और अपनी बातों को बात करके समझाना और लोगों को बताना अपने बारे में और बड़ा मजा आता है. क्योंकि आई रियली वांट पीपल टू नो अबाउट माय बैकग्राउंड, अबाउट आर्ट, एंड व्हाट आई हैव, व्हाट रिलेशन आई हैव विद ऑल दिस. बिकॉज ये रिलेशन शेयर करना बहुत जरूरी है. लोग काफी दफा समझते हैं कि द ह्यूमन बिहाइंड दिस पेंटिंग्स is an invisible human, but I don't want to be an invisible human. I want my work and my face to be there all the time with my work. तो बिल्कुल. तो आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हो यार. इतने लोग होते हैं, जब देखते हैं तो वो फील करते हैं कि यार इफ शी कैन डू इट देन आई कैन डू इट एज वेल. तो ये भी होता है ना. इट्स लाइक अ पॉजिटिव चेन गोइंग ऑन देन. हाँ. तो जितने लोग हैं जो फिर रिलेट कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार ये भी हमारी तरह इंसान है, अगर ये कर सकती तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी कोशिश कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ यू इंस्पायर पीपल, व्हिच इज वंडरफुल. बिल्कुल सही कह रही है. मेरी अम्मी आपको गुड लक बोल रही है कि आपके फर्दर सेशंस भी बहुत मजे के हों. कांट वेट टू सी. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड कि हम दोनों की मॉम्स देख रही हैं इस वक्त. हाँ. देखो, दैट इज द मोटिवेशन वी हैव. और माशाल्लाह our families are so motivating. अल्लाह का शुक्र है. I've seen you always talking about your mother, माशाल्लाह. How lovely and supportive she is toward all you kids. कितना इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत जरूरी है. पता है, जब आपके पास माशाल्लाह से आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो वो भी एक बहुत ही इंकरेजमेंट आपको उससे मिलती है. देन यू वांट टू डू मोर एंड मोर बिकॉज यू आर गेटिंग दैट सपोर्ट एंड यू आर गेटिंग दैट इंकरेजमेंट फ्रॉम योर लव्ड वंस. तो ये बहुत जरूरी है. एंड आई बिलीव वही बात है कि किसी के भी, मतलब ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि किसी के भी बच्चे को कोई चीज आपको नजर आ रही होगी, किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, या किसी का इंटरेस्ट आई डोंट नो फ्लावर मेकिंग में है, या एक्टिंग में है, डायरेक्शन करने में, जो भी है, लेकिन आप उसको प्लीज फॉलो करने दें. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि वो जब वो चीज फॉलो करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा, बजाय इसके कि आप अपने आइडियाज उस पे इम्पोज करें. सो या दैट्स माय मैसेज. Yeah, you're absolutely right. Absolutely okay, right. Darling. Thank you so much for being on my show, and inshallah I'll be seeing you again soon. Very soon. Thank you so much, Aisha, for having me. It was such a pleasure, and again, I loved talking to you, and the whole conversation was so nice and so positive. Completely positive. Completely. देखो, positivity, positive chat and a cup of tea. Yeah. By the way, your tea. आपने तो लगता है शो के पहले ही खत्म भी कर ली. मेरी कहीं यहाँ पे पहुंची है. चलो ठीक है. हमारे शो पे टी तो भाई जरूरी है. आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इस वक्त चाय लेकर बैठे हों. जो नहीं पीते they can have she's having a tea and talking to us. Yeah. Okay, darling. Then I'm signing off. Thank you guys for being on our show, and I'm gonna put this up on IGTV. तो अगर जिससे भी मिस हो गया है वो IGTV में बाद में देख सकता है. Definitely. Thank you all. Okay, thank bye. you, Aisha. Khuda Hafiz. Lots of love. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामिल